Hello all. So today I shall be discussing not a today's article but rather one of the articles suggested by one of the students on the Telegram group. He had sent me an article of Louis Tillin and had asked me to discuss that particular article related to changes in federalism with respect to the new government, the new coalition government. Okay, so I shall be discussing the same article. And my suggestion to you is that whenever you send any article the next time, at least please mention the date. Okay, I could find that okay, this is the article from Indian Express, but I had to search for it, and fortunately since it was not a very old article, so I could simply find it. And yes, before I start discussing, I want to remind you all two things. One, this note, this will be available on the Telegram channel, and another is that if you are writing mains or if you have completed your foundation and want to focus on answer writing, the free session will be tomorrow, that is on Thursday evening 6 o'clock. So I would ask you all to attend it, and from Monday the foundation class is beginning. So regarding any questions, any concerns, if you want to join a PSIR foundation, you can definitely look forward to it. Okay, so now let us start the discussion. So the article is from 16th June, Indian Express, written by Louis Tillin, and the title is A New Federal Bargain, and this bargain she is talking about in context of the new coalition government that has been formed. But before I start discussing this article, I would like to discuss something regarding federalism. You see, when we talk about federalism, there are some of very particular features that are required for a federal government. First is at least two levels of government. Okay, it means at least the government should be at least at two levels. When we are looking at India, then at the central level is a government, then at the state level there is a government. When we are looking at the USA, they are also at the central level and at the state level. So this is the most important feature of federalism. Second is that it should be constitutionally guaranteed, which means there should be division and not delegation. देखो, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल पावर किसी और के पास है, लेकिन वो पावर किसी दूसरे को दे दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जिसके पास ओरिजिनल पावर है वो उस पावर को वापस ले सकता है. ये हो गया डेलीगेशन. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिए या आपके फादर ने आपको परमिट किया कि ठीक है ये बिजनेस या ये वाला डिसीजन ये तुम लो, so that is delegation of power, which means your father can take that back. but जब हम यहाँ पे डिवीजन की बात कर रहे हैं ना, it means कि वो तुम्हारा ओरिजिनल पावर है, rather than it has been given to you, that is your original power. For example, when we are looking at the state governments in India, they do not have to dependent on the center. कुछ पावर्स ऐसे हैं जिसके लिए सेंटर उन्हें डेलीगेट करता है, but primarily constitutionally when we are looking at the 7th schedule, वहां पे जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए स्टेट को सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा है, वो रिकॉग्नाइज्ड है और वो उसका ओरिजिनल पावर है. सो दैट इज वाई क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ओरिजिनल पावर. और ये जो ओरिजिनल पावर है ना, दिस शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, तो ये आपका हो गया फेडरलिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स किसी भी फेडरल सेटअप का. देखो, ठीक है ना. अब जब आते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फेडरलिज्म, तो देखो इसके लिए कुछ कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं. जैसे कभी कहा जाया गया है बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, कभी कहा गया है
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, ये भी कहा है गया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है ना। आई होप कि आपके नोट्स में ये सारे का सारा मेंशन होगा, बिकॉज दीज आर ऑल फीचर्स। एक और चीज है जिसे कहते हैं एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। जब हम यूएसए को देख रहे हैं तो यूएसए को कहा जाता है सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। क्यों कहा जाता है? लुक एट द अपर हाउस, all the 50 states they have to send precisely 2 delegates। लेकिन जब हम इंडिया में देख रहे हैं राज्यसभा में अलग अलग स्टेट्स का नंबर अलग है। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज लुक एट 5th and 6th शेड्यूल। नॉर्मल स्टेट्स के मुकाबले 5th शेड्यूल स्टेट्स के पास अलग पावर्स हैं, 6th शेड्यूल स्टेट्स के पास अलग पावर्स हैं। पहले जब हम 370 देख रहे थे तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर के लिए प्रोविजंस आर टोटली डिफरेंट। सो दैट इज व्हाई इंडियन फेडरलिज्म इज आल्सो टर्म्ड एज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। इट मींस हर स्टेट का जो फेडरल अथॉरिटी या फेडरल पावर है वो बराबर नहीं है, अलग अलग है। उसी के उलट जब हम यूएसए में देख रहे हैं तो यूएसए के ऑल 50 स्टेट सबके पास बराबर बराबर पावर है। सो दैट इज व्हाई इसे हम सिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब अगला एक और आता है द रिकॉग्निशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू नो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट 1973, इसमें कहा था कि फेडरलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। बाद में इसे अप्रूव किया था मिनर्वा मिल्स में जजमेंट और उसके बाद एसआर बोमाई जजमेंट, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग बाकी आगे आप देख सकते हो, चाहे आप नेबाम रेबिया जजमेंट की बात कर सकते हो तो ये, या कोहितो होलोन जजमेंट की बात सकते हो। ऑल दी जजमेंट्स आर रिलेटेड टू फेडरलिज्म, that also you must be aware about। देखो मैं डिटेल में I cannot get into the detail, otherwise this will be perhaps a 45-minute or 1 hour long lecture, but I have a time constraint of 20 to 25 minutes, okay। और Supreme Court has said that India is a federalism and it has got 3 specific features। क्या क्या है दो 3 specific features? The first is that there is a written constitution, second is separation of powers, and third is independent judiciary। So when there is a written constitution, which means the power of every federating unit has been clearly mentioned, and there it has also been mentioned that which subject or which power belong to which of the federating unit, and in case there is a conflict then there is an independent judiciary to adjudicate on those disputes। So these are the 3 features which have been mentioned by the Indian Supreme Court, and that is why India is a federal state, ठीक है ना। अब आते हैं लुई टिलिन के आर्टिकल पे। So what she has gone on to explain, she has said that since 2014 there have been multiple initiatives. Some have been those which have strengthened the federal feature of Indian Constitution, but there have been some other decisions which have pushed India towards some more centralizing administration. There have been some centralizing tendencies, and she has said that when we are looking at the 2024 government formation, then there are 2 features, specific features। The very first thing is that BJP has got dependence on its allies। तो when BJP has got dependence on its allies, उसका मतलब क्या है? It will have to take its allies into confidence into consideration। allies कौन होते हैं? रीजनल पार्टीज होती हैं।
तो naturally those regional party, they will have focus on the regional interests and regional aspirations. So whatever the decision the central government is taking, उसमें जो regional aspirations हैं, regional concerns हैं, they need to be factored into. तो इससे क्या होगा, naturally the federal unit, the federal feature or the federal axis, that will get strengthened. Second, what she has said is that when we look at the government or the overall BJP performance, its performance in southern states that has improved. It has got one seat in Kerala while increasing its vote share. Then it has got no seat in Tamil Nadu, but still its vote share has increased. In Telangana, it has got seats. In Andhra Pradesh, it is in alliance in the government and it has got seats. Then in Karnataka, it has performed very well. So all these primarily 5 southern states, because Maharashtra generally they do not consider as southern state. So since BJP has a stake in all these southern states, so naturally बीजेपी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजिंग हो. बीजेपी जो भी डिसीजन लेगी उसमें ये जो all these southern states, their stakes will be taken into consideration, their interest will be taken into consideration. ठीक है. So this is the important factor and that is why ये 2 फैक्टर हैं जिसके कारण Louis Tillin is saying that perhaps we can see a new federal compact or a new federal bargain. उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2014 के बाद बताया है कि how things have gone on. सबसे पहले she said that जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बना गया. तो देखो प्लानिंग कमीशन कोई फेडरल फीचर नहीं था, प्लानिंग कमीशन तो सेंट्रलाइजिंग था. That ultimately the states will have to demand its funds from the planning commission. और प्लानिंग कमीशन किसके कंट्रोल में था, उसके चेयरमैन थे पीएम. सो प्लानिंग कमीशन कभी भी फेडरल फीचर नहीं था, वो एक सेंट्रलाइजिंग फीचर था. उसकी जगह जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग का एक स्पेसिफिक मैंडेट है. वो मैंडेट में क्या है, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. जब आप देख रहे हो नीति आयोग के रूल, चाहे वो इसे क्या कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को निकाले या हेल्थ एजुकेशन वगैरह के इंडेक्स को निकाले, या फिर एडवाइजिंग अदर स्टेट्स अबाउट हाउ टू इंप्रूविंग देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल. तो ये सबसे क्या हो रहा है कि 2 प्लानिंग कमीशन is a body set, it is an executive body set up by the center, but it is engaging with the states to improve their performance. So it is not just about cooperative federalism, it is also about competitive federalism. ठीक है. Then came GST and GST Council. तो ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन फिस्कल फेडरलिज्म, क्योंकि पहले क्या था, पहले था वैट, स्टेट्स का अपना कैलकुलेशन था, सेंटर के अपने टैक्सेस चल रहे थे. अभी क्या हो गया है कि एक्सेप्ट फॉर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीजें हैं उसके बारे में जो डिसीजन होता है वो क्या है, वो सेंटर एंड स्टेट, द फाइनेंस मिनिस्टर्स, दे सिट टुगेदर एंड दे टेक अ डिसीजन. सो यहां पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि 1/3 वोटिंग है सेंटर के पास, 2/3 है स्टेट के पास, और कुछ भी पास होने के लिए यू रिक्वायर 3/4 ऑफ द वोटिंग, एंड मेनी ऑफ द डिसीजंस दे हैव बीन टेकन बाय कंसेंसस. सो इट मीन्स कि द कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ओवर द फिस्कल इश्यूज, ओवर द टैक्सेशन इश्यूज, that have strengthened, that have increased. So इसका मतलब क्या हुआ, GST is yet again another example of strengthening the federal axis, a move towards cooperative federalism. But उसके बाद when we are looking at it, abrogating Article 370. So देखो Article 370 को one thing is strengthening the national identity and providing the rights of the marginalized communities in Jammu and Kashmir. वो देखने का एक डायमेंशन है, no doubt, but many scholars they will look at it from the dimension of federalism. पहले क्या था, Jammu and Kashmir had a separate independent identity.
It had its own constitution. So federalism again क्या कहता है? Two levels, separate identities. When you look at the USA में USA has got its constitution and other states, specific states, they also have their own constitutions. They have their own citizenship. So उसी तरह से आप यहाँ भी देख रहे थे, एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर का सिटीजनशिप का भी एक अलग प्रोविजन था, 35A आप जिसे कहते हो. तो जम्मू कश्मीर का जो सेटअप था, दैट वाज अ फेडरेटिंग सेटअप, बट व्हेन दैट वाज abrogated or that was diluted, that this was a centralizing effort. और आपने क्या किया? आपने उसे स्टेट भी नहीं रहने दिया, उसकी जगह उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया. सो इवन ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन द स्टेट. क्योंकि अगर यूटी बन गया जम्मू एंड कश्मीर, वो नहीं कह सकता ना कि ठीक है 7th शेड्यूल का जो स्टेट लिस्ट है वो सारे का सारा आई शुड हैव इंडिपेंडेंस, बिकॉज नाउ इट इज नॉट अ स्टेट, इट इज ए यूनियन टेरिटरी. और यूनियन टेरिटरी के पास अपने इंडिपेंडेंट पावर्स नहीं होते, इट इज डिपेंडेंट ऑन द सेंटर. ओके, एंड देन शी सेज दैट जस्ट बिफोर इलेक्शंस देयर वाज दिस आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, व्हिच इज अगेन अ सेंट्रलाइजिंग फीचर. व्हाई? क्योंकि व्हेन देयर इज वन नेशन वन इलेक्शन, एंड व्हाट वाज बीइंग सेड दैट नॉट जस्ट स्टेट एंड central and state elections they should be clubbed together, even the panchayat elections they should be clubbed together. तो ऐसे में क्या होगा कि जो central many a times during the state election, when the state election is there, it is the state issues or issues of that particular area, that particular territory, वो strong रहते हैं, उसके basis पर voters they decide. But if you are merging state and national elections, it may so happen कि स्टेट के जो इश्यूज हैं जो पर्टिकुलर टू दैट ज्योग्राफी हैं, दे माइट गेट सप्रेस्ड, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इश्यूज दैट वोटिंग माइट टेक प्लेस. अगला फर्क इसमें क्या पड़ सकता है कि जो नेशनल पार्टीज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग रहें रादर देन दी स्टेट बेस्ड रीजनल पार्टीज. So again, one nation, one election was also being seen as a centralizing issue. So अगर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग फेडरलिज्म, और देखो हर साल फेडरलिज्म पर सवाल आना ही आना है, तो आप इस तरीके से इफ अ क्वेश्चन इज की इन रिसेंट टाइम्स हाउ इट हैज गॉन, तो यू कैन एक्चुअली मेंशन अबाउट ऑल दीज एग्जांपल्स कि हाउ फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया गया. देन वी कैन, जैसे फॉर एग्जांपल इसके रिगार्डिंग आप ये भी बोल सकते हो कि बीएसएफ का जो मैंडेट था ना अप टू 50 किलोमीटर्स, वो जो बढ़ा दिया गया, जिसके अगेंस्ट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी प्रोटेस्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी प्रोटेस्ट किया. ठीक है, सो दीज आर ऑल स्पेसिफिक एग्जांपल्स व्हिच यू कैन कोट, यू कैन मेंशन alongside the views of experts. अब she has also talked about some of the emerging tensions, some of the tensions that might emerge. The very first she talks about is delimitation. देखो जो बंद हुआ था पिछले 50 साल से डिलिमिटेशन, पहले इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, बाद में वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे डिलिमिटेशन को पुश कर दिया गया था. नाउ द न्यू पार्लियामेंट हैज बीन सेट अप एंड देयर इज एक्सपेक्टेशन कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा. तो जनरली क्या होता है कि डिलिमिटेशन इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट कि एवरी एरिया को एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, वो कहते हैं ना कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. सो उसके लिए यही है ना कि जिस एरिया में हम पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड कर लें या डिवाइड कर दें नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. अगर हम हर 10 लाख के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, तो सपोज एक स्टेट जिसके पास 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, इट विल हैव 10 MPs. जिसके पास 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, इट विल हैव 100 MPs, क्योंकि हम एक 10 लाख के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं ना. सो उस केस में दिक्कत क्या है कि वी ऑलरेडी नो कि जो सदर्न स्टेट्स हैं दे हैव वर्कड टू मच ऑन द आइडिया ऑफ सोशल डेवलपमेंट, फैमिली प्लानिंग. इसके कारण क्या हुआ है कि उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट हैज टेपर्ड. But when we look at northern states like Bengal, Bihar, then उत्तर प्रदेश, इनका पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, अब जाकर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है.
एज ए रिजल्ट क्या सिचुएशन है कि अब जब डिलिमिटेशन होगा, हम पॉपुलेशन के बेसिस पर बात करेंगे, देन वी आर लुकिंग एट अ यूपी जो कि 22 से 24 करोड़ पॉपुलेशन पे है, मीन्स रफली 1/6 ऑफ इंडिया इट इज। वी आर लुकिंग एट अ बिहार जो कि 10 करोड़ का पॉपुलेशन लेकर बैठा हुआ है। सो नेचुरली यूपी और बिहार के केस में देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा कंपेयर टू अ तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका। तो बात है कि जब ज्यादा नंबर ऑफ लोकसभा एमपीज जहां से जा रहे हैं, नेचुरली वहां का क्लाउड ज्यादा होगा, वहां की बातें ज्यादा सुनी जाएंगी, वहां पे फोकस ज्यादा होगा, तो दिस कैन क्रिएट एन इम्बैलेंस। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जो डिलिमिटेशन है ना, इसके कारण दिस कैन क्रिएट अ फेडरल इम्बैलेंस एंड नेक्स्ट इज चैलेंज टू फिस्कल फेडरलिज्म। इन रिसेंट टाइम्स यू मस्ट हैव सीन डी.के. सुरेश का वो स्टेटमेंट, और उसके अलावा कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी फर्दर पुश किया कि वी पे सो मच टू द टैक्सेस बट इन रिटर्न वी गेट सो लेस। क्योंकि सेटअप क्या है कि इंडिया एज अ होल इट हैज टू ग्रो। सो उस केस में क्या है कि द रिचर स्टेट्स नेचुरली दे विल बी पेइंग मोर टैक्सेस, but their developmental needs are comparatively less compared to the lesser developed states। तो उसके लिए क्या होगा कि इनका जो एडिशनल टैक्स है नेचुरली इट विल बी ट्रांसफर टू द लेसर डेवलप्ड स्टेट्स लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। तो इसके कारण दिस इम्बैलेंस हैज गॉट टू बी देयर। लेकिन डर वही है कि इसके कारण देयर कैन बी ए चैलेंज, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आपने देखा ना, कोई बोलता है कि साउथ इंडिया को एक अलग स्टेट, अलग नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। सो दीज आर ऑल चैलेंजेस, और ये आपके फेडरलिज्म से एसोसिएटेड इश्यूज हैं। वैसे देखो, अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगेन नहीं जा सकता, लेकिन टेस्ट सीरीज के टाइम पे और PSIR फाउंडेशन के टाइम पे नेचुरली वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन डिटेल, ठीक है। सो दीज आर द इमर्जिंग टेंशंस, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया कि जो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी है, इन दोनों के बीच का टेंशन है। सो उसके कारण भी फेडरलिज्म पे चैलेंज पड़ता है। फॉर एग्जांपल ऑन द तीस्ता इशू, इंडिया इज सेइंग दैट वी शैल बी नेगोशिएटिंग। वेस्ट बंगाल कह रहा है कि आई एम अ पार्टी बट आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। और इंडिया गोइंग फॉर एंगेजमेंट विद श्रीलंका एंड तमिलनाडु, इट कंटिन्यूअसली सेज कि नहीं, तमिल को इश्यूज है, तमिल आर नॉट गेटिंग देयर राइट्स वगैरह वगैरह। सो दीज आर सम ऑफ द इमर्जिंग चैलेंजेस। और अब पंजाब विच टॉक्स अबाउट दैट हम अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें तो हमारे लिए कहीं ज्यादा आसान है, बट इंडिया ने क्या कह रखा है कि नहीं, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान हैज टू इंश्योर दैट देयर इज नो टेरर एक्टिविटीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट्स टेरिटरी। सो दीज आर ऑल फेडरल चैलेंजेस एंड दैट यू कैन मेंशन इन योर नोट्स, एंड इन क्वेश्चन कम्स यू कैन मेंशन इन योर आंसर शीट, ओके। सो व्हाट देन शी गोज दैट to discuss what has changed in 2024 elections. Because of the coalition government, naturally there will be multiple power centers, JDU, then you have got TDP. So यहाँ पे क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट के पास एक अपनी मेजॉरिटी नहीं है, तो कोई भी अगर वैसा बिल लाना है, उस बिल को लोकसभा से पास कराना है, तो उसे तो अपने कोalition पार्टनर का सपोर्ट चाहिए ना। सो नेचुरली it will have to keep JDU, TDP, then शिवसेना, शिंदे वाली, ये सबको in good humor so that they support the bill। तो अगर इन सारे जो फेडरल पार्टनर्स हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, अगर उनमें से किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, तो द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक देयर ऑब्जेक्शन इनटू कंसिडरेशन। तो यहां से क्या होता है, एक कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच स्टार्ट होता है, विच इज गुड फॉर फेडरलिज्म। And this will also work against the centralizing power under the PMO। अभी तक क्या था, it is the prime minister who was the leader, most popular person of the party, and even MPs were winning in the name of PM। So naturally since PM is that much strong, naturally PMO will be strong। So जो भी डिसीजन PMO से ओरिजिनेट होता है, कोई दूसरा मिनिस्ट्री उसके ऊपर कोई बड़ा ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकता है। सो दैट इज वाई पीएमओ अब तक बहुत स्ट्रांग था, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि सिंस इमर्जेंस ऑफ कोalition एरा,
perhaps the PMO will somehow weaken or somehow it will cede its power to its other coalition partners. Okay, लेकिन there can also be issues as per Louis Tillon. उन्होंने क्या कहा है कि ये जो रीजनल पार्टीज है ना, इन्हें फेडरल बैलेंस की चिंता नहीं है. दे डू नॉट केयर दैट मच अबाउट द फेडरल बैलेंस. इनका होता है अपना पार्टी का इंटरेस्ट. पार्टी का इंटरेस्ट कैसे फोकस करना है? मेरे मेंबर्स दे शुड बिकम मिनिस्टर्स. एंड सेकंड इज फोकसिंग ऑन देयर स्टेट इंटरेस्ट रादर देन टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर फेडरल आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर लुकिंग एट व्हाई आर वी सेइंग कि ये मोदी को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगी सरकार चलाने में. रीजन क्या है? देखो, आंध्र प्रदेश को ऑलरेडी अमरावती को कैपिटल बनाना है और इनका जो चंद्रबाबू नायडू उन्होंने 6 प्रॉमिसेस किया, उसके लिए भी पैसे चाहिए और आंध्र का सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं है. तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सेंटर से फंड चाहिए. तो ये सिचुएशन था, या तो आप मिनिस्ट्री ले लो या तो आप फंड ले लो. इन्हें फंड चाहिए ना, क्योंकि वापस दोबारा पावर में आना है और लोगों को दिखाना है कि यस आई कैन गवर्न बेटर. सेम इन केस ऑफ बिहार. बिहार में जॉबलेसनेस इज अ बिग इशू. स्पेशल स्टेटस टू बिहार इज अ बिग इशू. डेवलपमेंट ऑफ बिहार इज अ बिग इशू. सो नेचुरली, और दोनों का डिमांड है, आंध्र का भी और बिहार का भी, रिगार्डिंग स्पेशल स्टेटस. आंध्र कहता है कि सिंस नाउ हैदराबाद इज नॉट विथ अस, दैट इज व्हाई गिव अस स्पेशल स्टेटस. So there is a chance कि स्पेशल स्टेटस तो नहीं, बट अ जनरस फाइनेंशियल पैकेज विल बी देयर. ठीक है, तो इसके कारण वही उन्होंने कहा है कि दे टेंड टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एज वेल एज इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. एंड शी हैज ऑल्सो गिवन सम एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि टीडीपी का जो एक एमपी था उसने सपोर्ट किया था 370 का एब्रोगेशन. So something which you are saying that this action was against the federal idea, एक फेडरल पार्टनर तो उसे सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा जेडीयू itself has said कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन से कोई इशू है नहीं. So again, despite being a coalition government, there is no guarantee कि इसके कारण फेडरल एक्सिस स्ट्रांग होगा. That is what Louis Tillon is saying. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि द रिसेंट इलेक्शंस, जस्ट कंसिडर दिस क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट. न्यू गवर्नमेंट इन 2024 कैन herald a new era of फेडरलिज्म इन इंडिया. कमेंट. देखो, दिस इज द क्वेश्चन. आप क्या करो, इस क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं, यू राइट इट डाउन इन द कमेंट्स. मैं देख करके उसमें कौन सा सही है नहीं है, मैं उस पर अपना सजेशन दे दूंगा. एंड ट्राई टू डिराइव मेनी पॉइंट्स फ्रॉम दिस डिस्कशन एज वेल. ठीक है ना? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. ओके, अब चलो आगे देखते हैं. और अगला इन्होंने बोला है कि सो इट मे सो हैपन कि पहले जो डबल इंजन गवर्नमेंट इट वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट, दैट वाज अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट इन द स्टेट एंड एट द सेंटर. So she says that perhaps this will be extension of double engine government from BJP to the NDA. That center में भी NDA government, state में भी NDA government, and both will always agree on everything. So again, the idea of double engine government, that also goes against the idea of federalism. क्योंकि federalism में आप क्या कहते हो? That states should have a separate independent identity, decision making, etc. etc. लेकिन अगर मेन लीडरशिप तो सेंटर पे है ना, वही गवर्नमेंट अगर स्टेट में है तो सेंटर कैन रन द स्टेट और फोर्स द स्टेट टू टेक डिसीजंस एज पर इट्स ओन विलिंग. फॉर एग्जांपल आप देख लो, जब मन हुआ सीएम को बदल दिया, तो ये सब तो फेडरल आइडिया के अगेंस्ट है ना, क्योंकि पावर इज नॉट विथ द स्टेट बट रादर विद द सेंटर
डिस्पाइट देयर इज अ सेम पार्टी गवर्नमेंट एट द स्टेट. ठीक है, सो दैट इज वाई शी इज ऑल्सो नॉट वेरी मच होपफुल. लेकिन she has later on talked about some of the positives that she sees from this election, that which can be good for the federal polity in India. सबसे पहले the changed north south electoral map, as I discussed, कि except for Tamil Nadu बाकी सब जगह BJP has won. Everywhere its vote share in south has increased. So naturally BJP will like to take care of the interest. पहले क्या था कि सिर्फ जो हिंदी बेल्ट है, जो नॉर्थ है, वहीं से बीजेपी की गवर्नमेंट बन जा रही थी, तो साउथ के इंटरेस्ट्स को कंसर्न में लेने की जरूरत नहीं थी. बट नाउ बीजेपी विल थिंक कि उसकी भी जरूरत है. सो दैट इज व्हाई देयर विल बी अ मोर कंसेंसस ड्रिवन अप्रोच रादर देन अ सेंट्रलाइजिंग अप्रोच. सो नॉर्थ साउथ का इलेक्टोरल मैप जो चेंज हुआ है, उसके कारण बीजेपी और एनडीए का जो स्टेक इन द साउथ वो इंक्रीज हो गया है. एंड दिस क्रिएट्स अ स्कोप फॉर a genuine pan India federalism, क्योंकि again the party in the center, it has got stakes in all these states, so naturally it will have to take into consideration the stake of all these states, so that can lead to a genuine pan India federation, and this can lead to a strengthening of trust between center and the states. क्योंकि अगर तमिलनाडु के कंसर्न को बीजेपी इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, व्हाई, कि कल को हम पावर में आएंगे, या फिर केरला का इंटरेस्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, तो इससे क्या होगा, केरला गवर्नमेंट विल आल्सो लुक एट इट पॉजिटिवली एंड दिस कैन लीड टू अ स्ट्रॉन्ग फेडरल एक्सिस. एंड शी हैज गिवन सम स्पेसिफिक सजेशन. एक तो क्या है, 263 के अंडर में सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर इंटरस्टेट काउंसिल बना. हालांकि इसकी मीटिंग रेगुलर नहीं होती. इन्होंने कहा कि इंटरस्टेट काउंसिल जो कि अभी एमएचए के है अंदर है, गेट इट आउट ऑफ एमएचए, गिव इट एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंटरस्टेट काउंसिल कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग कंसेंसस, रिजॉल्विंग इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है ना, डेवलपिंग कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, state center resolving state center conflict over the issues like governor and deployment of CAPFs, etc., etc. So that is why her first suggestion is that strengthen interstate council, and second she suggests is that the delimitation exercise that you are going to take, start that after developing a genuine consensus, just like for VAT you had done, then for GST you did. Similarly, try to develop a consensus that what should be the formula for delimitation. क्योंकि अगर आपने नॉर्थ को और साउथ को, दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों स्टेट्स को साथ में लेकर के डिसीजन लिया, तो जो साउथ के कंसर्न्स हैं दैट विल आल्सो बी एड्रेस्ड, जो नॉर्थ के कंसर्न्स हैं दैट विल आल्सो बी एड्रेस्ड. सो समहाउ सच अ फॉर्मूला कैन बी डिवाइज्ड, जिससे कि साउथ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दो I took steps for my own development, I am being punished for that. क्यों? क्योंकि मेरे पास कम सीटें हैं, नॉर्थ के पास ज्यादा सीटें हैं. ठीक है ना. सो दीज आर टू स्पेसिफिक सजेशंस शी हैज गिवन टू स्ट्रेंथन द फेडरल कॉम्पैक्ट. ओके, देखो फेडरलिज्म के रिलेटेड इफ यू हैव गॉट एनी अदर डाउट, you can naturally comment, and I hope कि most of the doubts that you have that have been addressed. और इसके अलावा एक काम करना, वापस फेडरलिज्म और ये जीएस वाला रहे, PSIR कोई भी, गो बैक टू योर नोट्स, वहां पे जो भी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे इफ यू आर गेटिंग सम एडिशनल पॉइंट मेंशन इट ओवर देयर, सो दैट दिस विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथनिंग योर नोट. जो क्वेश्चन मैंने दिया है, राइट योर आंसर्स इन द कमेंट, आई शैल बी गिविंग द रिव्यूज और सजेस्टिंग सम मोर पॉइंट्स. ठीक है ना. और बाकी कोई भी डाउट है देन यू कैन ऑलवेज पुट. और हाँ, जैसे आज आर्टिकल दिया है, कोई भी ऐसा आर्टिकल लगे कि ठीक है ये मुझे समझना है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. ओके, आई एम अगेन. ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच.